And that being done, let's move on to the big conversation here on Prime Time at 9 p.m. Deepika Padukone's controversial appearance in JNU earlier this week made quite a splash, viewers. Social media continues to be divided between Go Deepika Go group and a boycott Chapak gang. Smriti Irani today spoke up after Prakash Javadekar a few days ago. Then there was Shashi Tharoor and so many others jumping in, fighting and responding to each other. The entire conversation has become about Deepika Padukone visiting JNU and whether she was right or not. I believe what has actually gotten buried in all of this is the real issue. Perhaps the issue that even the filmmakers had in their minds. But the real issue that we should actually be focusing on, that we should actually be talking about, that India must debate. The menace of acid attacks in our country. The plight of the survivors of acid attack. What they go through. And it's not just the physical pain, it's not just the physical trauma that I'm talking about. Their struggle, their essentially lifelong struggle, and how so many of them today are actually fighting back. Because I believe that acid attack is one of the most heartless crimes that anybody can actually do in a split second. But so painful and so cruel. And the intent, just the sheer intent behind it, that you want to destroy the way a person looks. You want to literally destroy the identity of a person. I want to make it clear, tonight we are not going to sit here and discuss Deepika or her movie. Tonight we are going to get you real stories of acid attack survivors. Tonight we are going to talk about how important it is to enforce the Supreme Court's ban on the sale of acid. Yes, acid is not supposed to be sold so easily in our markets, but it does get easily sold. It is still available, which is why when you look at the national crime statistics, some horrifying numbers emerge. In 2014, viewers, 203 instances of acid attacks happened. In 2015, it went up to 222. In 2016, it further went up to 283. There was just a little bit of drop in 2017 with 244 attacks, and in 2018, 288 acid attacks took place. And these are only the ones that actually got documented. So many of them don't even get documented. So tonight we have decided that we will bring you the real life heroes who fight this brutality, this cruelty. No endorsements, no controversy, no politics right now. Simply them and their stories. Bimla joins us this evening, an acid attack victim. We've also got Reshma Qureshi. We've got Dr. Anita Sethi, who's joining us, and she's been working with acid burn victims for the last 8 to 9 years. Anju is also an acid attack survivor, and so is Anshu Rajput, who are all joining us right now. बिमला, लेट्स बिगिन विद यू. आपसे शुरू करते हैं और पहले तो आप ये हमारे व्यूअर्स को बताइए, इफ यू कैन टेल आवर व्यूअर्स, कि क्या हुआ और कब हुआ आपके साथ, ये इंसिडेंट कब हुआ? मेरे साथ ये 27 फरवरी 2010 में दिल्ली कैंट के अंदर हुआ. मैं ऑफिस से घर आ रही थी, तो मैं ऑफिस से घर आई तो मैं डायरेक्ट एक रिक्शे में बैठी, जो कि हमारी कॉलोनी का ही था रिक्शे वाला. तो मैं उसमें बैठी, मैं रिक्शे से 1 किलोमीटर की दूरी पे गई होंगी तो 2 बाइक पे आए लड़के. नीले रंग की बाइक थी, नीला हेलमेट लगाया हुआ था उन्होंने. तो उन्होंने एकदम से मेरे ऊपर होली से 2 दिन पहले कुछ कलर मिक्स करके ऐसे डाल के चले गए. मुझे पता नहीं चला, मैंने सोचा कोई होली का कलर डाल के चला गया है. तो तुरंत मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया. इतने में क्या हुआ, मैंने कहा किसी ने मेरे पे कुछ डाल दिया है, मुझे पता नहीं लग रहा क्या डाला है. मैं रिक्शे से कूद गई नीचे, मैं सड़क के किनारे आ गई, मैं तड़प गई बिल्कुल. मैंने कहा हुआ क्या, मेरा सूट सारा सिल्क का था, वो सब मेरे पे चिपक गया ऐसे करके. फिर मैं ऑटो में बैठने को तैयार हुई तो ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट कर दिया. भीड़ इतनी हो गई थी वहाँ कि मैं आपको बता नहीं सकती. पूरा
इकट्ठा मतलब कि बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। फिर मैंने दूसरे ऑटो में बैठने को उसने मैंने कहा भैया मुझे होश है, आप मुझे सिर्फ हॉस्पिटल तक पहुंचा दो, आप नहीं फंसोगे। कह रहे नहीं नहीं पुलिस केस है। किसी ने मेरी कोई मदद नहीं करी। फिर एक लेडी ने मेरे बोला आप अपने घर वालों को फ़ोन कर दो, तो मैंने उसको फ़ोन करा, उसने मुझे फ़ोन भी हाथ में नहीं दिया, कहती नहीं मैं बता दूंगी। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड का फ़ोन मिलाया, पता नहीं मिला नहीं मिला, मैंने इतनी देर में तो मैंने बता ही दिया था, पर हस्बैंड मेरे आ गए। इतने में कोई कर्नल अपने फैमिली के साथ कहीं जा रहे थे, उनकी फैमिली थी, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, सीधा गाड़ी में बैठाया। मैं उस शख्स से मिलना चाहती हूँ, अगर मैं किसी जरिए से उनसे मिल सकूँ ना, बस मेरे लिए भगवान बनकर उस वहाँ आया। उन्होंने मुझे हमारे नज़दीकी एक बोर्ड हॉस्पिटल रहा करता था, तो वो वहाँ ले गए। उन्होंने वहाँ कितना बोला कि इसके ऊपर पानी डाल दो, थोड़ा बह जाएगा। किसी ने मेरे पे पानी नहीं डाला। वहाँ जो कर्मचारी थे काम करते थे, डॉक्टर की वहाँ सुविधा ज़्यादा नहीं थी, तो उन्होंने बोला नहीं, तो उन्होंने पानी नहीं दिया, वो कहते रह गए। उन्होंने बोला मैं आई का डॉक्टर हूँ, वो ये कैंट के उधर ही कहीं बेस हॉस्पिटल के अंदर आइस के डॉक्टर थे, पर उनकी किसी ने सुनी नहीं। उन्होंने फिर वहाँ से मेरे लिए एम्बुलेंस कराई, इतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे, पर तब तक मैं तड़प ही रही थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो उन्होंने मेरी एम्बुलेंस करा के मुझे सीधा दीनदयाल हॉस्पिटल रेफ़र करा। दीनदयाल रेफर हॉस्पिटल करा तो उन्होंने मेरी ड्रेसिंग करी। ड्रेसिंग करने के बाद उन्होंने फिर मुझे RML राम मनोहर लोहिया दिल्ली के अंदर ही है, उसमें शिफ्ट करा। तो वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद उन्होंने मुझे 18 दिन रखा है हॉस्पिटल के अंदर। 18 दिन रखा है, कुछ नहीं करा, सिर्फ ड्रेसिंग कर रहे हैं और कोई और बाकी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। 18 दिन के बाद उन्होंने मुझे छुट्टी कर दी, जिससे कि मेरी एक आंख भी डैमेज हो गई सारी। एक मतलब मेरा राइट साइड बिल्कुल काम नहीं करता है, कोई भी पार्ट काम नहीं करता है। फिर 18 दिन के बाद मैं घर आई। घर आने के बाद पहले तो मेरे बेटे ने मुझे देखने से इनकार कर दिया कि ये मेरी मम्मा है ही नहीं। हमें पता है कि हम कैसे स्ट्रगल करते हैं। मेरे हस्बैंड ने सारे घर में शीशों पे ढक दिया था, मेरे को मेरी शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने कि ये डर जाएगी। मेरे बेटे मेरे पास आने से डरता था। फिर उसको समझाया गया बड़ी मुश्किल से, ये मम्मा ही हैं, ऐसे हो गया, मम्मा कहीं जा रही थी ऑटो में गिर गई। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा 2 साल 2 महीने का बेटा था, वो ऑटो में बैठा नहीं है। मेरी मदर इन लॉ अगर हॉस्पिटल आती थी उसको लेके, वो ऑटो में उनको भी नहीं बैठने देता था। कहता नहीं दादी, जैसे मम्मी को हो गया वैसे आप हमें भी मार देगा ऑटो वाला। मतलब इतनी दहशत हो गई थी हमारे अंदर। और पुलिस केस करा, पुलिस वाले बोलते आप हमें बताओ, आप हमें बताओ। मैंने कहा या तो मेरे इन लॉज पे शक करते वो, या फिर मेरे मायके, क्योंकि हमने लव मैरिज करी थी। तो मैंने कहा नहीं, मेरे घर सास ससुर भी मतलब ससुराल वाले भी अच्छे हैं और मायके वालों को बहुत सीधे लोग हैं, इनको कोई किससे, हमें आज तक ये नहीं पता कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, हमें कोई मतलब नहीं था किसी से। पर नहीं पता फिर मैंने उनसे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अगर पता होता तो मैं आज तक नहीं पता चला, पुलिस नहीं ढूंढ पाई कोई, मतलब ये पता ही नहीं, आज तक पता नहीं चला इसका कि कौन थे वो जो डाल के चले गए। आज 9 साल हो गए, 10वां साल लग जाएगा ये फरवरी में। 9 साल हो गए, कुछ पता नहीं लगा आज तक कि किसने डाला, क्यों डाला। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं अंशु राजपूत के पास भी जाना चाहूंगी। अंशु, आप तो सिर्फ 15 साल की थी, मुझे बताया जा रहा है, जब आप पे एसिड डाला गया। क्या हुआ उस समय? शुक्रिया। मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और मेरे में 55 ओल्ड मैन ने एसिड अटैक किया था। रीज़न ये था कि मैं 15 इयर्स की थी और वो 55 ओल्ड मैन थे। और रीज़न ये था कि मैं साइकिल से जाती थी, वो मेरा पीछा करते थे। एक दिन उन्होंने मेरा साइकिल रोका और मेरे को बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ा मुझे धक्का लगे, वो 55 साल के और मैं 15 साल की, वो मेरे प्रति ऐसे कैसे सोच सकते हैं। तो मैंने उनको खुद से समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी बात नहीं माना। फिर उनका कंटिन्यू ऐसा पीछा करते रहे और मैंने एक दिन फाइनली परेशान होकर अपने घर वालों को बताया, मम्मी पापा को बताया।
मम्मी पापा ने उनके घर वालों ने उनके बेटों से बात किया, पर होता है ना हमारी सोसाइटी में कि अपनी गलती हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी से, इसलिए उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया और मैं घर पे सो रही थी, उन्होंने सोते हुए मुझ पर तेजाब डाल दिया। तेजाब डालने के बाद उसने एक पल में तेजाब डाल दिया, लेकिन जिसकी लाइफ ख़राब हुई वो उसने कभी नहीं सोचा होगा कि 2 मिनट का गुस्सा और सामने वाले की पूरी लाइफ ख़राब कर रहा है वो। तो उसके बाद जो मुझे झेलना पड़ा, पहले मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में 12 दिन तक एडमिट रही, वहाँ पे मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला। फिर मैं घर पे रही, एक आँख मेरी डैमेज हो चुकी थी। जब मैं घर आई तो सोसाइटी का बहुत गंदा रिएक्शन था। सबसे बड़ी बात, जब एक लड़की विक्टिमाइज होती है तो सोसाइटी हमारी नहीं अपनाती है, सब लोग साथ छोड़ दे, कोई साथ नहीं देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई और अभी फिर मैं घर पे रहती थी, कुछ करने को नहीं था, लेकिन आज मैं सिरोज में जॉब करती हूँ। हैंग आउट है एक कैफ़े, अंशु वहाँ पे अब काम करती हैं और वहाँ पे एक्चुअली काफ़ी अंशु की तरह और भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं और वो कैफ़े को चलाते हैं। अंशु, लेकिन आप कहते हैं कि ये जो थे, ये जिन्होंने आप पे डाला, ये जो आदमी था 55 साल का, ये आपका नेबर था, तो आप उनको जानती थी? वो कैसे वो घर में घुस के उन्होंने आप पे तेजाब डाला जब आप सो रही थी? एक्चुअली मैं जितने भी अटैकर्स होते हैं या तो बहुत जानने वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, और अनजान व्यक्ति कोई एसिड अटैक नहीं करता, क्योंकि एक अनजान व्यक्ति एक लड़की पे एसिड अटैक क्यों करेगा। इसलिए लगभग सब स्टोरी सेम ही होती हैं। और वो मेरे पड़ोसी थे, मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, वो मेरा दीवार कूद के आए, उन्होंने मेरे घर में घुस के मेरे पे सोते हुए तेजाब डाला था। Let me go across to Dr. Anita Sethi. First, what we are trying to do here is bring out these stories, Dr. Sethi, and the first struggle, obviously, for them is to, for any acid attack survivor, is to accept what's happened to them, the pain that they go through, and then the slow recovery. What are the dangers? What's the kind of challenges that are there in the medical recovery for an acid attack survivor? Yeah, as you said earlier, this is really one of the most heinous crimes against men or women. I have enough men also who come with these injuries. So this just seems to be so easily available and so used so frequently. And this is, as an eye specialist, I get to, have to treat them because often it is on the face, and the eyes are very often affected. So we need to treat them along with the plastic surgeons. And the problem here is that the acid injury is really extensive. And when we want to graft or repair the skin, we often can't find enough normal skin to graft, and so that we can try and make the areas look normal again. So that is the biggest challenge. And we need to do repeated surgeries, and it's very traumatic for them financially, physically. They have to stay away from home, stay in the hospital, keep coming for follow-up. There's a lot of dressing that needs to be done so that the wounds can heal. So it is a very prolonged kind of a recovery for them. And they're all really brave. And all my patients who do come to me, we actually almost become friends because we just spend so much of time together trying to, get over this, the physical trauma and the mental trauma also. They really need a lot of support, and it's very, very hard for them. जैसे कि बिमला जी कह रही थी कि जब वो पहली बार 15-18 दिन के बाद जब वो घर वापस गई तो उनके हस्बैंड ने सारे शीशे कवर कर दिए थे, और ये बहुत एक कॉमन ये यूज़ किया जाता है, अपनाया जाता है ये तरीका, क्योंकि काफ़ी बार एसिड अटैक सर्वाइवर्स खुद ही जो चेंज हुआ है उनके चेहरे पे वो देख के उनका ट्रॉमा और बढ़ जाता है। अंशु, आपकी तो आई साइट को इमीडिएटली उस समय ही डैमेज हो गया था, तो कब थोड़ा थोड़ा विजन आना वापस शुरू हुआ, और जब आपने फिर कब रियलाइज किया कि कैसे आपका चेहरा बदल गया है? मैं पहले तो 2 आँखों से नहीं देख पाती थी, और एक आँख तो मेरा तुरंत से डैमेज हो गया था, और जो एक आइस था उससे मैंने 7 मंथ बाद देखना स्टार्ट करा। 7 मंथ तक बाद मैं नहीं देख पाई थी,
और उसके बाद जब फर्स्ट डे मैं सो के उठी मॉर्निंग में, तो मैंने देखा कि मैं थोड़ा थोड़ा देख पा रही थी। तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि मैं देख रही हूँ, पर उन लोगों ने बिलीव नहीं हो रहा था उनको कि मैं देख पा रही हूँ। तो सब लोगों ने फिर कहा कि बताओ ये क्या क्या है, तो मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने, क्या होता है ना कि सबसे पहले जो होता है कि फेस इम्पोर्टेंट होता है हमारा। तो मुझे ये था कि मैं कब देखना स्टार्ट करूंगी और कब मैं अपना फेस देखूंगी। तो जब मैंने अपना, मतलब कि मैं देख रही थी इधर उधर, तो मेरे घर में आईना सब छुपा दिया गया था। तो उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, मुझे फेस देखना है। तो मैंने एक टिफ़िन में पानी लिया और उसमें मेरा फेस देखा। तो ये देखो कि मैं टूट चुकी थी, ये कहो कि मैं ख़त्म हो गई थी, कि मेरा फेस मेरे पास नहीं है। और मैंने बहुत रोया, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे अकेला फील नहीं होने दिया। हमेशा मेरी हिम्मत रही कि आज मैं सोसाइटी के सामने खड़ी हूँ। आपने कैसे अपने आप को उसके बाद संभाला, और कैसे मतलब, और कितना समय ये लगा उस सिचुएशन से फिर आपको थोड़ा बाहर उभरने के लिए? उस सिचुएशन से तो मैं अभी भी बाहर नहीं आई हूँ, और मैं कभी आ भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ी हादसा था और मैं इससे कभी बाहर नहीं आ पाऊँगी। क्योंकि बाहर ये सोसाइटी आने ही नहीं देगी। ये हर घड़ी से हमें रियलाइज़ करा देता है कि हम एक विक्टिमाइज हो चुके हैं, हमारे ऊपर एसिड अटैक हो चुका है, हमारा फेस ख़राब हो चुका है। ये हमें पल पल दिखाता है कि नहीं, तुम्हारा फेस ख़राब हो गया है। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, हमेशा मेरी हिम्मत दी कि, और हमेशा कहा कि बेटा, फेस से कोई खूबसूरती नहीं दिखती है, तुम्हारा दिल खूबसूरत होना चाहिए, और तुम इस दिल की खूबसूरती से काम करो कि लोग तुम्हारे चेहरे की नहीं, तुम्हारे दिल की खूबसूरती दिखें। जी, आपके लिए अब तो 10 साल होने को आए जब अटैक हुआ है, तब से आपका इस 10 साल में कैसा, मतलब कैसे आपने इस चीज़ से लड़ा? कैसे पहले अपने आप को समझाया, फिर अपने बेटे को समझाया, और अब भी रोज़ ही ये होता होगा जब आप बाहर जाती हैं तो कोई ना कोई ऐसा मिलता होगा, आप कैसे अपने आप को समझाती हो, इस सिचुएशन से डील करती? मैम, जब ऐसा हुआ तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इतना जल गई होंगी। तो मैं सुन रही थी, मेरे हस्बैंड रो रहे थे, तो मेरी मदर इन लॉ का एक, मतलब उनके वो शब्द आज तक मेरे कानों में गूंजते हैं। मेरी मदर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड के मुझे दिखाई तो दे नहीं रहा था, पर मैं वैसे बता रही हूँ, ऐसे कंधे पे हाथ रख के बोला, बेटा अभी मैं हूँ, मैं तेरा साथ दूंगी, कोई नहीं देगा तो मैं तेरा साथ दूंगी। वो शब्द मेरे कान में आज तक मुझे याद है। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगे कि नहीं, मुझे कुछ हुआ तो है, कुछ ज़्यादा ही हुआ है जब भी ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को, आपने बहू ने सास की सेवा करी है, ये सुना होगा, पर सास ने बहू की सेवा करी है शायद ये नहीं सुना होगा। आज मैं जिंदा हूँ ना यहाँ इस पे, तो मैं अपनी सिर्फ एक सास की बदौलत। फिर उन्होंने धीरे 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 मैंने अपने बेटे को समझाया, मतलब मेरे पास तो आया ही नहीं है, मतलब इसका बचपन तो छिन गया। सिर्फ एक कहते हैं कि गलत फहमी में उसने मेरे पे डाला है, मैंने सुना है लोगों से, गलत फहमी में उसने मेरे पे डाला है, पर उसकी एक छोटी सी गलती मेरे बच्चे का बचपन छीन लिया उसने माँ की गोद नहीं देखी, मेरा सारा घर उसने तहस नहस कर दिया एक छोटे से उसकी गलती ने। फिर मैं घर से बाहर नहीं आती थी, मैं घर, मतलब मुंह ढक के ही रहती थी। घर में भी मैंने मुंह ढक के रहना, क्योंकि हम फैमिली में रहते थे, जॉइंट फैमिली है हमारी, मैं मुंह ढक के रहती थी। तो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड कहने लगे, नहीं क्या हुआ है आपको, कुछ नहीं हुआ है। मैंने तो शीशा कब देखा मुझे पता ही नहीं था। काफ़ी टाइम बाद जब मेरा फेस थोड़ा सा ठीक हो गया तब मैंने आईना देखा है, उससे पहले मैंने आईना भी नहीं देखा था। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए ड्रेसेस लेके आते थे, क्योंकि मैं ऊपर नहीं पहन पाती थी तो नीचे लाते थे, नीचे की स्कर्ट पहनी मैंने, और ऊपर मैं चुन्नी से कवर करके रहती थी। तो धीरे धीरे ये मुझे बाइक पे बैठा के बाहर ले जाते, मैं नहीं जाती, मैं सिर्फ ढक लेती थी, मुंह ढक लेती थी।
तो फिर ये कहने लगे नहीं कुछ नहीं हुआ है आपको, आप सिर हटा दो। फिर भी मैं चुपके से इनके सामने ऐसे करके फिर ढक लेती थी, पीछे बाइक पे बैठ जाती थी। तो मतलब बड़ा मुश्किल था मेरे लिए बाहर जाना। लोग देखते तो पलट पलट के देखते और बातें भी करते थे आपस में कि क्यों डाला इस पे, मतलब सवाल सारे औरत पे उठते। अगर शायद मेरी फैमिली अच्छी ना होती तो मतलब कि लोगों की बातें, मतलब वही है कि मतलब गलती हर तरफ से औरत की है कि इस पे क्यों गिरा, हमने क्या गलती करी, गलती तो उसकी है जिसने करा है, सजा उसको मिलनी चाहिए ना, पर सजा क्यों हमें मिलती है। हम घर से बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने मुझे बाहर निकाला, मैं बाहर निकल लगी। फिर मेरे सिर से, मतलब कि मैं जब सिरोज से मिली थी तब तक मेरे सिर पे चुन्नी ही रहती थी, पर जब मैंने इनको सबको देखा कि नहीं मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां हैं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, पर फिर मेरे अंदर हिम्मत आई थोड़ी थोड़ी। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ करना है। फिर उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि आप ऐसा करो। फिर मैंने एक छोटी सी शॉप खोली है, छोटी सी शॉप है मेरी जिसको मैं चलाती हूँ। यहाँ भी लोग आते हैं, मतलब सामान कम खरीदते हैं, मेरे बारे में ज़्यादा पूछते हैं, क्या हुआ कैसा हुआ, वही बातें करना। तो कि मैं आज तक समझ नहीं पाई कि कैसे दुनिया को कैसे समझाएं हम। यही इसीलिए हम ये बात करना चाहते हैं और इसीलिए आज आप लोगों से बात कर रहे हैं कि दुनिया को शायद समझाने का यही तरीका है कि वो आपको जाने और आप क्या सोच रहे हैं और आपका क्या जो दर्द है और आपकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है, जैसे आप लोग लड़ रहे हैं और फिर भी अपनी लाइफ को इस तरीके से जी रहे हैं, वो समझेंगे लोग तो ही शायद बदलाव आ पाएगा, तो ही जो बदलाव आ पाएगा। क्योंकि अगेन अंशु, मैं इस चीज़ पे आपके पास वापस आऊँगी। आपने भी कहा यही चीज़ कि लोग जैसे रिएक्ट करते हैं, कोई शुरू में जब आप वापस गई लोगों ने जैसे रिएक्ट किया, वो उस बारे में आप बोलिए आज। जब तक लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये गलत है, ये सही नहीं है, शायद वो बदलेंगे नहीं अपना फिर एटीट्यूड। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि लोगों में बदलाव लाने के लिए हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है छपाक, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। अगर लोग उसको छपाक को देखेंगे तो उसमें उसको स्पष्ट पता चलेगा कि जब एक लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा होता है तो कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता है, सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है, कितना कोर्ट कचहरी उसको जाना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम्स उसको आती है। इसलिए हम लोगों ने ये मूवी बनाई है। तो मैं एक बार सभी लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को एक एसिड अटैक पीड़िता का दर्द जानना ही है तो देखें छपाक, और उसमें उन सभी को पता चलेगा कि कितना कुछ संघर्ष करती हैं वो लोग अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए। जी, और मेरे को ये बताइए अंशु, आप जो शीरोज के साथ काम करती हैं वहाँ पे और भी आप लोग साथ में हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसे मतलब आप उस स्टेज तक पहुंची कि बाहर जाके और हम एक कैफे में रहें और लोगों के सामने रहें, ये आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में बताइए। हम लोगों का कैंपेन है स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन, जो एसिड अटैक लड़कियों के लिए काम करता है। और हम लोगों का सिरोज हैंगआउट लखनऊ में मैं काम करती हूँ, और जिसमें कि मेरी बहुत सारी फाइटर दोस्त मेरे साथ काम करती हैं। और हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट रन किए हुए हैं और हम लोग बहुत प्यार से सर्व करते हैं गेस्टों को। और यहाँ पे जो एसिड अटैक पीड़िता होती है उसके जो ड्रीम्स होते हैं, जो अटैक होने पर ख़त्म हो जाते हैं, वो अटैक के बाद हम लोग पूरा करते हैं। अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ाते हैं, किसी को म्यूज़िक सीखना है, किसी को किसी चीज़ की कोचिंग करनी है, या किसी को भी कुछ भी करना है तो हम लोग यहाँ पे कराते हैं। और साथ साथ हम लोग जॉब देते हैं, सेल्फ डिपेंड करते हैं। क्योंकि जब एक लड़की पे एसिड अटैक हो जाता है ना, तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है, उसको पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे जीऊँगी, सोसाइटी के सामने कैसे निकलूँगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे रह के एक प्यारा सा मैसेज देते हैं कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन हमें फिर भी अपनी आवाज़ उठानी है, और आवाज़ उठानी है उन लोगों के लिए जो आज सुरक्षित हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जब तक आप लोग नहीं अपनी आवाज़ उठा के बात बोलेंगे, सोसाइटी में चेंज नहीं होगा। एंड मैं ये लोगों से भी कहना चाहती हूँ जो हमारे दर्शक है कि इस बारे में आप सोचिए
एक पल में कैसे किसी की ज़िंदगी इतनी पूरी तरीके से बदल जाती है। और ये समझने की कोशिश कीजिए कि किसी ने एक बस थोड़ा सा एसिड छिड़का और वहाँ से चला गया, और उसके बाद जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर है, उसका लाइफ कैसे बदल जाता है। जो उनको स्ट्रगल स्टेप बाय स्टेप, पहले तो खुद एक्सेप्ट करने के लिए, उसके साथ जो डिप्रेशन साथ में आता है, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, आईसाइट चली जाती है, दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ता है, फैमिली, सोसाइटी, इतने लेवल्स पे ये लड़ाई लड़नी है और हम इसको सीरियसली नहीं लेते। एसिड अटैक के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों है? लुक एट द कन्विक्शन रेट। And I told you the data that is available in terms of number of incidents. Every year, 200 to 300 incidents are taking place, which are documented. I'm not even talking about those which happen, which never make it to an official complaint or an FIR. The conviction rate in between for 2016 and 2017 had dropped to 37% and 35%. 100 केसेस जा रहे थे तो सिर्फ 35 केसेस में जो है कुछ भी जस्टिस मिल रहा था। सोचिए इस बारे में। पिछले साल जाके वो उठा है और 65% हुआ है। जब तक इसमें स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट ना मिले, जब तक इन केसेस में हम जो अटैकर है उसको ढूंढ के पनिशमेंट ना दें, जब तक हम ये ना इंश्योर करें कि एसिड ऐसे खुले में नहीं बिकना चाहिए और जो बेच रहा है उसको जेल ना भेजे, तब तक ये चीज नहीं बदलेगी। If I can just go across to Dr. Anita Sethi one more time. Dr. Sethi, you know, just how rigorous is this process? कितनी बार एक एसिड अटैक सर्वाइवर को बार बार ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ता है? अगर हम सिर्फ आंखों की बात करें और दोनों आंखें डैमेज हो चुकी है तो कितना समय लगता है, और वो क्या उनकी वो स्ट्रगल के बारे में हमें बताइए। Dr. Sethi, if you can hear me, the question was to you. Yeah, sorry, I lost last bit. No, आप कह रहे थे कि कितनी बार हाँ, कितना ग्रूलिंग होता है ये ट्रीटमेंट वाला प्रोसेस, मेडिकल ट्रीटमेंट का प्रोसेस। Okay, we're just going to fix that line with Dr. Anita Sethi so that she can hear me. हमारे साथ और अभी रेशमा कुरैशी और अंजू भी जुड़ रहे हैं हमारे दिल्ली के स्टूडियो से, और उनसे भी बात करते हैं इस बारे में। रेशमा, आपके साथ शुरू करते हैं। आज हमारा मेन एम ये है कि हम लोगों को बताएं कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, जो फाइटर्स हैं, वो कैसे डील करते हैं इस लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट के साथ। अगर आप बता सकें कि आप सिर्फ 17 साल की थी जब ये हुआ आपके साथ, कैसे हुआ और कैसे आप 2014 से आज तक आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया और डील किया है। 19 मई 2014 में मेरे साथ में अटैक हुआ था, और अटैक होने का ये रीज़न था कि मतलब मेरी जो बहन की शादी हुई थी वहाँ पे, और तो उसके बाद मेरी बहन की जो शादी हुई थी तो उनको बहुत सताते मारते पीटते थे वो। तो उसके बाद फिर हमसे देखा नहीं जाता था क्योंकि हमारी बहन बहुत तकलीफ़ में थी। उसको 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। लड़की को उन्होंने स्कूल में से उठा लिया, लड़के को। उसके बाद हमने उनके ऊपर एक केस कर दिया। जिस दिन कोर्ट हमको बच्चा देने वाली थी, मैं और मेरी बहन एग्ज़ाम देने जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। तो उस समय हम काफ़ी लोग थे, उधर स्टेशन के पास था, लेकिन हमारी किसी ने हेल्प नहीं की। बहुत सारे लोग थे और हमको सब देख देख के दूर भाग रहे थे, यहाँ तक कि हमारे करीब कोई नहीं आया। मेरी बहन मुझे एक हॉस्पिटल ले गई। वो हॉस्पिटल में मुझे देखने से बिल्कुल मना कर दिया। पहले बोला FIR लिखाइए, फिर हम आपको देखेंगे। वहाँ से फिर मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ से मुझसे बहुत सारे सवाल किए गए। 6 घंटे तक मेरे फेस पे एसिड डाला हुआ था। 6 घंटे के बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 6 घंटे तक आप पुलिस स्टेशन में थी और आपको कोई अस्पताल नहीं लेके गया, कोई इमरजेंसी मेडिकल एड नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ? ये कहाँ पे हुआ आपके साथ? शहर का नाम बताइए। नहीं, कुछ नहीं। ये मेरे साथ में अटैक इलाहाबाद में हुआ है, और 6 घंटे तक मेरे फेस पे एसिड डाला हुआ था। 6 घंटे के बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसके बाद मुझे एक हॉस्पिटल ले गए, स्वरूप रानी इलाहाबाद में है। वहाँ मेरा मतलब ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मेरा फेस को मतलब धुला गया सब कुछ। तो उसके बाद फिर
मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात तक के। फिर मेरे पापा और भाई लोग जब वो बॉम्बे में थे, वो बॉम्बे से इलाहाबाद आए, फिर उन्होंने मुझे प्राइवेट में एडमिट किया। फिर मैं 3 महीने तक प्राइवेट में थी। फिर प्राइवेट में होने के बाद फिर मेरी डॉक्टर ने बताया कि एक आइज़ डैमेज हो चुकी है। फिर मेरे पापा मम्मी सब बहुत परेशान थे। फिर उन्होंने मुझे बॉम्बे लेके आ गए। बॉम्बे में मेरा एक ऑपरेशन हुआ। फिर बॉम्बे वाले ने मुझे बोला चेन्नई लेके जाइए, शायद लड़की की कम उम्र है तो आइज़ शायद बच जाए। तो मैं चेन्नई गई। चेन्नई में भी मेरी आँख को जवाब दे दिया कि नहीं, अब नहीं बन सकती है। फिर वहाँ से फिर मैं बॉम्बे आई। फिर जब तक मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे साथ में क्या हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा सुसाइड करने की कोशिश करती थी और मैं ये सोचती थी कि फेस ही ख़राब हो गया तो मेरा जी के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद बहुत तकलीफ़ होती थी कि क्या करूँ ज़िंदगी में, कैसे चलूँ। माँ बाप को भी देखना होता था कि एक मैं सबसे छोटी हूँ घर में और सबसे लाडली थी, तो इसलिए बहुत तकलीफ़ होती थी देख देख के कि पापा भी बहुत परेशान है, मम्मी भी, भाई भी, पूरी फैमिली बहुत परेशान होती थी। मेरी बहन भी मुझे देख के बहुत परेशान रहती थी जिसके हस्बैंड ने ऐसा किया। उसके बाद फिर मैं 3 महीने तक किसी से बातचीत नहीं करती थी, कुछ नहीं, सिर्फ घर पे रहती थी। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स लोग आते थे स्कूल के, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करती थी। 3 महीने के बाद रिया शर्मा जो मेक लव नॉट स्कार में चलाती हैं, वो मुझे 3 महीने के बाद मिली। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। उन्होंने मुझे 3 घंटे तक हक करके, एक तरफ ही बैठे थे, उन्होंने मुझे काफ़ी हिम्मत दी। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एसिड अटैक और होते हैं और हुए हैं, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था। उसके बाद मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा जो एसिड अटैक से, मैंने ये सोचा कि मैं बहुत अच्छी हूँ, और जिसकी बहुत सी सर्वाइवर होती हैं जिनकी दोनों आँख नहीं होती हैं, बेचारी एकदम ब्लैंक हो जाती हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत अच्छा कहा कि हाँ मैं बहुत ठीक हूँ, मेरे से भी बहुत बहुत बेचारे जो तकलीफ़ में हैं। तो उसके वजह से मैंने उनको देख के मेरे अंदर बहुत हिम्मत आई। और रिया शर्मा ने भी मुझे बहुत हिम्मत दी। उन्होंने मुझे कुछ जीने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी कि बेटा आप जियो और कुछ करो लाइफ में, मैं आपके साथ में हूँ। फिर जब से हम मेक लव नॉट स्कार में, फिर मैंने एक ब्यूटी टिप्स बाय रेशमा एक कैंपेन शुरू किया था, जिसमें मैंने बताया था कि एसिड बहुत आसानी से बिक जाता है, बहुत आसानी से। आज भी एसिड बहुत आसानी से बिक जाता है। मार्केट में जाएंगे, अगर आपके पास में पैसा भी नहीं होगा तो सामने वाला फ्री में दे देगा। अगर मेडिकल में दवा लेने के लिए जाओ, नींद की दवा, कोई भी दवा, तो वो पहले बोलता है कि डॉक्टर से लिखवा के लेके आओ तब हम आपको देंगे। तो एसिड क्यों आप ऐसे ही बेच देते हो? एसिड भी तो मतलब प्रूफ होना चाहिए ना कि हाँ आपके पास प्रूफ, आप किस काम से ले रहे हो उसकी आप जानकारी करिए। आप ऐसे लोगों को एसिड बेच देते हो जो जाके किसी की जिंदगी एकदम से लाइफ खराब कर देता है। करेक्ट करेक्ट। अब तो आप एक मॉडल हैं और आप एक व्लॉगर भी हैं, और अब मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि जो आप जब अपनी स्टोरी बताएंगी तो और एसिड अटैक सर्वाइवर्स को भी ये स्ट्रेंथ मिलेगा कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं और सोसाइटी में एक चेंज ला सकते हैं। बट अंजू, आप पहले आपसे भी बात करें, आपको भी 2014 में आपके एसिड फेंका गया आप पे, कैसे हुआ ये और क्या उसमें आपको न्याय मिला है अभी तक? अभी तक तो खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेरे जब साथ ये अटैक हुआ था जब मेरी बहुत छोटी उम्र थी, और ये मेरे ससुराल वालों ने दहेज के चक्कर में करा था। आप कितनी उम्र थी आपकी तब, और मतलब शादी को कितना समय हो गया था अंजू, आप बता सकते हैं तब क्या हुआ और क्यों किया उन्होंने ये? हाँ मेरी उम्र 16-17 साल की थी। दहेज के लिए मेरे घर वालों से पैसे मंगाते थे। मेरी नंद को बोलती थी पैसे लेके आओ अपने घर से, मैंने मना करा तो मेरे मना करने पर मेरे साथ ये हादसा करा था उन्होंने। तो फिर आपको कौन वहां से हॉस्पिटल लेके गया, क्या हुआ? भैया निकल गई। I think she's lost her talk back. She's going to just put it back so that हम उनसे वापस बात कर सके। अंजू जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपको फिर अस्पताल कौन लेके गया उस समय जब ये हुआ? तो मेरे को अस्पताल मेरे बच्चे लेके गए थे। अच्छा, फिर कैसे आपने, मतलब उसके बाद क्या हुआ? आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या उनको उनके अगेंस्ट एफआईआर फाइल की गई, क्या आपके इन-लॉज को जेल भेजा गया, क्या वो केस अभी भी चल रहा है? और अस्पताल लेके गए तब आपको डॉक्टर्स ने क्या बोला?
जब मैं हॉस्पिटल मेरे बच्चे लेके गए तो मुझे नहीं पता था, मेरे बच्चे लेके गए थे तो मेरे बच्चे मेरे भाई के घर लेके गए थे। वहाँ जाकर मैं बेहोश हो गई थी। वहाँ बेहोश होने के बाद फिर मेरे भाई ने मथुरा फ़ोन करा था, मेरे मम्मी पापा को बुलाया था। तो वहाँ आगरे के हॉस्पिटल में लेके गए तो आगरे वालों ने मना कर दिया, मेडिकल कॉलेज में। तो उसने माना, फिर दिल्ली के लिए रेफ़र करा। फिर दिल्ली से मेरा इलाज चलता रहा। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी तुम अपनी बेटी को बचाओ, अभी तुम कुछ मत करो एफआईआर। फिर मेरी 6 महीने बाद एफआईआर करी थी पापा ने। फिर डॉक्टर ने थोड़ा वो लिख के दिया, तब मेरे केस में थोड़ी जान भी आई और अभी भी केस चल रहा है मेरा। जब आपने पहली बार आपको पता चला कि आपके साथ क्या हुआ है, डॉक्टर ने आपको समझाया, तब आपके साथ कौन था आपको सपोर्ट करने के लिए? जैसे अभी हमें ये रेशमा बता रही थी कि वो ये एनजीओ से मिली और वहाँ से उनको बहुत सपोर्ट मिला। एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है अंजू जी कि जिनके साथ ये हादसा होता है कि हम में से किसी पहले के तो साथ भी हो। मेरे मम्मी पापा ने ही मेरी बोलिए। बिल्कुल, मेरे पहले मम्मी पापा ने सपोर्ट करा। जो मेरे फैमिली डॉक्टर है ना, उन्होंने ही एक एनजीओ का नंबर निकाला। फिर रिया दीदी से मुलाकात आई इलेक्ट्रॉनिक नोटिस से, उन्होंने मेरी फिर सपोर्ट करी। मेरे बच्चों को भी स्कूल में डाला और वही अभी तक मेरी सर्जरी और मेरे बच्चों का ही कर रही हैं। अंशु, एक मैसेज जो आज आप देना चाहें अंशु राजपूत बाकी एसिड अटैक सर्वाइवर्स को, कि आपने जैसे अपने लाइफ को अब हैंडल किया है, जिस एक बहुत मुश्किल स्टेट ऑफ माइंड से जहां आप आज पहुंची हैं, वो कैसे मुमकिन हो सकता है? आपका एक मैसेज बाकियों के लिए। मैं तो ये सभी सोचती हूँ लड़कियों के लिए यही कहना हिजाब चाहती हूँ कि दिखता हमारे है, साथ वो कुछ भी हिजाब हादसा नहीं हो दिखना जाए। चाहिए। हाँ अंशु राजपूत, आप बोलिए। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ हैं, अगर हमारे साथ कुछ भी हादसा हो जाता है तो हमें ज़िंदगी से और लाइफ से कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें खुद की आवाज़ खुद बनना होगा, तो लोगों का खुद सपोर्ट मिल जाएगा। और ना जाने इस आवाज़ से कितनी लड़कियां अवेयर होंगी और ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब होने से बचेगी और सोसाइटी में भी चेंज आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां अपने घरों में हैं वो बाहर निकल के आएँ और अपनी आवाज़ खुद बने और अपने संघर्षों को पूरा करें और अपनी लड़ाई लड़ें। बिल्कुल, और यही मैसेज हम चाहते हैं कि आप लोगों के थ्रू दूसरों को जाए। ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ जो जैसे रेशमा भी कह रही थी कि सेल एसिड का इतनी आसानी से होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बैन करके, फिर भी कोई उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। किसी सरकार को नहीं पड़ी, उसको किसी पुलिस वाले को नहीं पड़ी। जो बिक रहा है वो बिक रहा है, इतनी आसानी से कोई भी जाके ये खरीद के किसी पे भी फेंक सकता है। मेरा अंगूठा लगवा लिया था और केस भी नहीं दर्ज किया था। वो आगरे से फिर केस दर्ज किया था मेरे पापा ने। और अब तो मैं यूँ कि DCW में खुद काम करती हूँ और एक दूसरे की हेल्प भी करती हूँ। एसेट पे भी काम करा है मैंने। एसेट जो बिकता है उसकी ID मांगो तभी उसको एसेट दो, किस काम के लिए चाहिए, उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए, पूरा प्रूफ होना चाहिए, तभी मिलना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और जो मिलना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि लड़कियों की तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। रेशमा, मुझे क्या आपको जब ये आपके साथ हुआ पता था कि इसके साथ कैसे डील करना है? किसी ने जब पहली बार आप पे एसिड उस समय एसिड फेंका कि इमीडिएटली तब क्या करना चाहिए? शायद ये एक चीज़ सबको मालूम होनी चाहिए, क्या पानी फेंकना चाहिए, कपड़े से साफ करना चाहिए, हाथ लगाना चाहिए, ये चीज़ें जो है वो हमारे दर्शकों को बताएं। पानी के नीचे बैठा देना चाहिए, जो तेजाब होना वो सारा निकल जाए, नहीं तो अंदर बस आता ना तो वो फूट के बाहर बेर निकलता है, इसलिए पानी बेहतर है इसके लिए। सबसे पहले पानी डालना चाहिए, पानी स्प्लैश करना चाहिए एक्चुअली, जिसके भी ऊपर अटैक हुआ। डॉक्टर अनीता सेठी, वुड यू वांट टू कम इन ऑन दैट एंड just tell to our viewers what needs to be done in the immediate few minutes after the attack? इमीडिएटली आपको पानी ही डालना चाहिए, क्योंकि कोई भी और कपड़ा वगैरह डालोगे तो वो चिपक जाएगा। एंड प्रॉब्लम एसिड का ये है कि वो बहुत जल्दी पेनिट्रेट करता है, तो जितनी जल्दी आप उसको वॉश कर सकें वो ही बेस्ट रहता है। और इमीडिएटली शुड हॉस्पिटल के में ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि जितना हमें वॉश करना है वो घर पे वैसे वॉश हो नहीं सकता।
तो हॉस्पिटल में ही सेलाइन से इमीडिएटली वॉश करें। और आजकल तो हॉस्पिटल्स ऑल्सो मतलब वो वेट नहीं करते हैं FIR वगैरह की। ट्रॉमा में जो इमरजेंसी में आता है वो इमीडिएटली ट्रीटमेंट अब शुरू कर देते हैं। सो ऐसा किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर को नहीं बोलना चाहिए कि आपको FIR करो या जो भी करो। इमीडिएट जो हमें फर्स्ट एड, इमीडिएट ट्रीटमेंट करना वो तो हमें करना ही होता है। और स्टिल इसके बावजूद भी ये बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, बट एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप जो है वो इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए। रेशमा कुरैशी जो है वो एक मॉडल और व्लॉगर भी हैं। रेशमा, आप किस बारे में आपके व्लॉग्स होते हैं, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने मॉडलिंग की है और मैं अभी भी करती हूँ शूट वगैरह। तो मेरा मतलब यही है कि हाँ, मैं करती हूँ तो मैं खुद के लिए नहीं, सब लड़कियों के लिए करती हूँ जिसके साथ में हुआ, जिसके साथ में नहीं हुआ। क्योंकि हम जो तकलीफ सहे हैं वो नहीं चाहती कि कोई और लड़की तकलीफ सहे, क्योंकि बहुत पेन उठाना पड़ता है, ऑपरेशन सब कुछ का बहुत दर्द झेलना पड़ता है। ये लाइफ के बाद लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। तो मतलब आज मैं ये हर जगह शूटिंग वगैरह सब कुछ करना का मकसद मेरा यही है कि मतलब एसिड को बैन नहीं करवाया जाए। फिर भी हमारा कोई काम, कोई चीज़ मतलब हो ही नहीं रही है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि एसिड को बैन करवाया जाए, फिर भी वो आज हर जगह हर शॉप में बिक रही है। क्यों ये एकदम से बैन क्यों नहीं करवाया जा रहा? आज भी अटैक हो रहे हैं। आज हमारे पास में एक लड़की है निशा करके, उसका अटैक हुआ है 2 महीने पहले। तो हमसे उसकी तकलीफ बिल्कुल नहीं देखी जाती है, क्योंकि हम भी वही चीज़ से बीते हुए हैं। आज उसको बहुत तकलीफ है, वो बहुत तकलीफ झेल रही है, बहुत चिल्लाती है, बहुत रोती है, लेकिन हम उसका दर्द समझ सकते हैं क्योंकि हम भी वो दर्द से झेले हैं। तो उसके लिए आज भी वो एसिड बिक रहा है। तो हम सभी यही मिलके चाहते हैं, जितनी भी सर्वाइवर हैं, कि एसिड ना बिके। सबसे पहले एसिड ना बिके। अगर आप हर एक चीज़ पे बैन करते हो तो प्लीज़ एसिड पे भी बैन करो। एसिड नहीं बिकना चाहिए। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ जुड़ी हैं सब एसिड अटैक सर्वाइवर्स, उनके पे जो ये अटैक हुआ ये अलग अलग रीजन से हुआ, और वो जो रीजंस है वो भी हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है। इन लॉज जो वो लोग जो अभी भी डाउरी मांगते हैं, और चाहे डाउरी भी इलीगल है हमारे देश में, पर ये फिर भी प्रेवलेंट है, और हमें और पैसा चाहिए और गाड़ी चाहिए और ये चाहिए, और बिना सोचे समझे जैसे फिर डॉटर इन लॉज पे अटैक होता है। वो एक बड़ी चीज़ है जिससे हमें फाइट करना। सोचिए कितनी ईजिली वो एसिड खरीद के ये जो है डॉटर इन लॉ की पूरी ज़िंदगी, अपनी बहू की पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। वो जो लोग जो किसी को रिजेक्ट करते हैं, जो स्टॉकर्स होते हैं, जो किसी लड़की के पीछे पड़ जाते हैं और दिन रात उनको तंग करते हैं, और जैसे ही उनको ना बोला जाए उनसे ये सहन नहीं होता। सबसे इजी तरीका, जाओ एसिड खरीदो, डाल दो लड़की पे, हो गया। वो लोग जैसे कि बिमला जी का केस है, हमें पता भी नहीं, शायद उन्होंने इनको कोई और समझ के कर दिया, शायद क्योंकि इनकी लव मैरिज थी तो किसी के दूर दराज के रिलेटिव ने ये कर दिया। हमें तो उनको तो आज तक ये पता भी नहीं चला कि उनके साथ ये क्यों हुआ है। कितने अलग रीजंस हो सकते हैं सबके लिए, बट कितना इजी है जो चाहता है कि इन पे टारगेट अटैक किया जाए, कि इनको दर्द दिया जाए। उस अटैकर के लिए सोचिए कितना ईजी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एसिड इतनी ईजिली मार्केट में मिल जाता है और उनको लोगों को पकड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। बिमला जी, जैसे हम दूसरों से भी बात कर रहे हैं, मैं वापस आपके पास इस चीज़ पे आऊँगी कि जो लोगों से इंटरेक्शन है उसके लिए कहाँ से स्ट्रेंथ आती है? या बार बार लोग वही सवाल पूछ रहे हैं, बार बार आपसे पूछ रहे हैं क्या हुआ, या पहले तो बात करने में बात नहीं करते होंगे, कतराते होंगे, और इस सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करती हैं? ये इसलिए बताइए क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे शायद और जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनको भी थोड़ा स्ट्रेंथ मिले। बिमला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, हेलो। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, वो सवाल आपसे था। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोल।
बोली मैं सुना नहीं बोली। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो लोगों का रिएक्शन है उसके साथ आप कैसे डील करती है? कुछ लोग जो बात ही नहीं करना चाहते, जो मुंह मोड़ लेते हैं, या कुछ लोग जो आपसे बार बार वही सवाल पूछते हैं, आप कैसे वो ताकत अपने अंदर ढूंढती हैं इस सिचुएशन से डील करने के लिए? क्योंकि अगर आप ये बताएंगी तो शायद और लड़कियों को भी वहीं से ताकत मिले। पर अब मैं ऐसा, अब कोई पूछता है ना, मैं उसको डीपली सारी बातें बताती, क्योंकि गलती मेरी नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं करी है, इसलिए कोई पूछता है तो मैं उसे क्लियर बताती हूँ कि ऐसा हुआ मेरे पे किसी ने। पहले मैं बताती नहीं थी, पहले मैं छुपा लेती थी कि क्या कहते, नहीं मैं जल गई, घर में जल गई, ऐसे कुछ बोलती। पर अब मैं क्लियर बताती हूँ, मेरे पे किसी ने तेजाब फेंक दिया, मैं क्यों डरूँ? अब मेरे अंदर हिम्मत है भाई, मैं फेस कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं औरों से ज्यादा खूबसूरत हूँ। हेलो जी जी बिल्कुल, जो आपने अब बात मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, बल्कि मैं कोई पूछता है तो डीपली बताती हूँ, और क्या। हाँ, पहले मैं कहीं जाती नहीं थी अकेली जी। पहले मैं कहीं नहीं जाती थी अकेली। अब मैं जहाँ जाना है मुझे एड्रेस दे दो, मैं अकेली पहुंच जाती हूँ, मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं आगरा तक अकेली चली गई हूँ। जो लड़की आधे घंटे का रास्ता अकेली तय नहीं करती थी, आज मैं अकेली कहाँ कहाँ पहुँच जाऊंगी, इतनी हिम्मत है मेरे अंदर आज। मैं कहती मैं किसी से कम नहीं हूँ। आप बिल्कुल हमारे सबके लिए एक हीरो हैं बिमला जी, कि आपने इतनी स्ट्रेंथ ढूंढी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली जो मैंने आपसे पूछा है, मैं अंशु से भी वही सवाल पूछना चाहूंगी। अंशु, जब आपने पहली बार बाहर जाना शुरू किया, कि अब आप बाहर शॉपिंग के लिए या पहली बार मूवी देखने कब गई, उसका कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? सबसे पहली बार मैं अपने गांव से मैंने आगरा तक की दूरी तय की थी। आगरा, आपको मैंने पहले ही बताया, आगरा में हमारा सिरोस कैफ़े है जिसमें हमारी एसिड अटैक फाइटर काम करती हैं। तो जब मैं वहाँ गई तो मैं फर्स्ट टाइम आई थी, तो मैंने देखा था कि लोग किस तरह मुझे देख रहे थे, किस तरह मुझ पर हंस रहे थे, कुछ लोग मुंह फेर रहे थे। लेकिन मैंने फिर भी, मैं और लड़कियों से मिली तो मुझे बहुत हिम्मत आई। मैं पहले फेस कवर करके चलती थी, फिर मैंने ओपन किया, क्योंकि मैंने उस दिन ठान लिया मन में कि फेस उनको कवर करना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हम फेस कवर करके क्यों चलें। बिल्कुल। तो फिर उस दिन मैंने कवर करना चाहिए, शर्म उन्हें आनी चाहिए, आज सोसाइटी के सामने सजा उनको मिलनी चाहिए, बंद कमरे में उनको रहना चाहिए, जेल के पीछे उनको रहना चाहिए, और वो लोग इस सोसाइटी में जो आप लोगों को भी से मुंह मोड़ ले, शर्म उनको आनी चाहिए। शुक्रिया, बहुत ज़्यादा धन्यवाद टू ऑल ऑफ आवर रियल हीरोज। आप लोग ही रियल हीरो हैं, आप लोग वो सर्वाइवर्स हैं जो एक नई स्टोरी लिख रहे हैं और जो एक नई लाइफ जी रहे हैं और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि कैसे इतनी ब्रेवरी के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ, उस चीज़ से लड़के उससे बाहर आके एक अच्छी ज़िंदगी और एक खुशी ज़िंदगी जी जा सकती है। These are just few examples. We just got you 4 stories. Stories that began with extreme pain. Stories that began with extreme horror. But stories which are also inspiration today. Stories which we all should know of these heroes. Stories that how they fought this battle. How this changed their life. And how they still came out of it, how they fought depression, how they fought the medical complications, how they fought the society's mindset, and still came out of that to lead their life with such dignity. Thank you so much for joining us on this conversation.